Hello everybody, Gaurav Sharma this side, and once again you have started watching Literary Sadda, and we have already discussed a lot of topics. And recently we discussed biography of Mr. Percy Bysshe Shelley for MPTET Working. It can also help you in a lot of exams in the field of English literature. So today we're gonna discuss a famous ode that is To a Skylark, है ना? To a Skylark. So what is in there? What kind of poem it is simply? So it fall under the genre of ode. So what is ode? Ode is some sort of poem which simply commemorate, or I should say remember, a person, place or thing, which is simply wrote in the a devotion of someone. So it can be considered as ode. Okay, so this is actually a ode, celebrates a song of a bird, that is skylark's sound, है ना? And also it simply traces a lot of things related to human psyche and human thinking. For example, Mr. P.B. Shelley tried to trace out some things. For example, the word is somehow unbodied. He simply tried to connect word to the soul, to a spirit which doesn't have any bodies, and it is only feeling pleasure, pleasure and pleasure. It has nothing to do with the pain. Only humans are mean to be suffered. That is what he wanted to say through these lines of poem. So P.B. Shelley is influenced totally. If we talk about the background of this poem was written in Italy, Livorno. Livorno was actually a place where P.B. Shelley, along with his sister, they both visiting that place that time. So what happened is that P.B. Shelley witnessed a bird flying in the sky, and it was going higher and higher and higher, and within fraction of seconds disappears from the view of Mr. P.B. Shelley. So it becomes inspiration for P.B. Shelley to write a poetry. But the thing is that the imagination of the poet made it a glory of English literature, along with To a Nightingale, or I should say Ode to Nightingale, written by Mr. John Keats, and these two considered as the glory of English literature. And this remark was given by Mr. Alexander Mackie. Okay, so in next few minutes, I will be discussing the text of this work. So let's move on. देखिए देखिए तो हम बात कर रहे हैं टू आ स्काईलार्क की। तो इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि आपको पोम का सार समझ में आए। ठीक है, और बाकी इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन, जो भी मेजर थीम्स होते हैं, मेजर एलिमेंट्स होते हैं, पोम के स्टोन में लिखा गया है ना, किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ था, किस ईयर में पब्लिश हुआ था, इन सब एलिमेंट्स के बारे में हम आगे बात करने लग रहे होंगे। अभी मैं आपको केवल ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस पोम का अर्थ क्या है ना, और ऑथर को इसके लिखने के पीछे रीजन क्या रहा हो, है ना। देखिए, बात कर रहे हैं टू अ स्काईलार्क की, और ये ओड है ना, जैसा कि हम जानते हैं। चलिए सर, देखिए हेल टू दी ब्लाइथ स्पिरिट, है ना। यहाँ हेल से तात्पर्य है नमस्कार करना, है ना, किसी को सम्मान देना, जैसे कहते हैं ना आका की जय हो। बिल्कुल इसी प्रकार से पुराने समय में हेल टू ब्लाइथ स्पिरिट, तो यहाँ हेल से तात्पर्य नमस्ते, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कुछ ऐसा है ना। और दी का मतलब होता है, अब चूंकि जो चिड़िया है उसका नहीं पता मेल है कि फीमेल है, तो यहाँ क्या है, जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। तो अब पुराने समय में ये आर का एक वर्ड है, जैसे ही हुआ, शी हुआ, है ना, तो पुराने समय में उसको दी बोला जाता है ना। तो इसलिए अब यहाँ हेल का मतलब नमस्ते, तो हेल टू दी ब्लाइथ स्पिरिट, है ना। हे कह सकते हैं, मतलब इसको एक तरह से आत्मा कंसीडर कर रहा है बर्ड को। अभी यहाँ पता नहीं चल रहा है कि वो किसके विषय में बात कर रहा है, आपको आगे समझ में आएगा कि चिड़िया को बोल रहा है ना। हेल टू द ब्लाइथ स्पिरिट, हे चिड़िया मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बर्ड दाउ नेवर बर्ड, ये चिड़िया तो तुम कभी थी ही नहीं। ये दाउ का मतलब होता है यू, है ना, और ये बर्ड का मतलब है बर, है ना। चिड़िया तो तुम कभी थी ही नहीं, है ना। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, है ना, कि तुम ऐसा लगता है कि जैसे कहीं
अब चूंकि ये आकाश में उड़ रही है, मैं आपको थोड़ा आगे बता रहा हूँ, जो हमें आगे पता चलता है, ये आकाश में उड़ रही है। तो ये जो 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 व्यूअर है ना, पीवी शैली है, पीवी शैली कह रहा है कि तुम यहाँ से तो हुई नहीं, या तो हेवन में हो या हेवन के कहीं नियर बाई किसी प्लेस से हो, जहां से जो है तुम्हारा, जो तुम्हारे हृदय में जो प्रसन्नता है, जो खुशी है ना, खुशी है, जो तुम खुश हो ना, तुम हैप्पी हो ना, pourest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art, है ना, जो तुम खुशी के गीत गा रहे हो ना, स्ट्रेन का मतलब होता है साउंड ऑफ म्यूजिक बीइंग प्लेड और परफॉर्म, है ना, कोई भी ऐसा म्यूजिक जो बहुत ही सोनरस हो, सुनने में बहुत सुरीला लगे, है ना, अच्छा लगे। तो पोर्ड दाई, अब ये कहीं हेवन या हेवन के नियर बाई किसी प्लेस से चिड़िया चहचहा रही है, मतलब चिड़िया अपनी ध्वनि निकाल रही है ना, और ऐसा लगता है कि कोई भी सिंगर हो, है ना, कोई भी कलाकार हो, किसी काम को करने से पहले उसको कम से कम उस पर प्रैक्टिस करनी होती है, तब अच्छे से हो पाता है। तो वो ये कह रहा है अनप्री मेडिटेटेड, मतलब उसने मेडिटेट ही नहीं किया, विचार ही नहीं किया, बिना विचार किए हुए वो ध्वनि निकाल रही है ना। तो ये कुल मिला के उसकी तारीफ कर रहा है ना, इसीलिए इसका नाम टू स्काईलार्क है। इसमें स्काईलार्क की तारीफ कर रहा है। ये मीनिंग देख लेना, स्ट्रेन, है ना, जो भी जरूरी हो सकते हैं, थोड़ा उल्टा पुल्टा मीनिंग को मैंने साइड में लिख दिया है ना। हाइजर स्टिल एंड हाइजर फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, है ना, बोल रहा है कि बिल्कुल ऊंचा ही ऊंचा, ऊंचा ही ऊंचा उड़ती जा रही हो, है ना। फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि स्प्रिंगेस्ट बोल सकते हैं तीव्रता के साथ ऊपर की तरफ, है ना। तो अब जैसे कि जो क्लाउड ऑफ फायर होता है, मतलब आग का जो धुआं होता है, आपने देखा होगा ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार जो चिड़िया है वो ऊपर की तरफ उड़ती चली जा रही है ना। द ब्लू डीप, द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट, है ना, और यहाँ ब्लू डीप से तात्पर्य है आकाश, है ना कि नदी, ठीक है। और आगे देखिए, एंड सिंगिंग स्टिल डू सोर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, है ना, मतलब गाती हुई उड़ती चली जा रही है और उड़ते हुए गा रही है, मतलब दो चीजें एक साथ चल रही है। अच्छा, इस डिवाइस को कियासमस के नाम से जाना जाता है। होल्ड ऑन। इस डिवाइस को इस डिवाइस को कियासमस के नाम से जाना जाता है। कौन सा? ये सिंगिंग स्टिल डू सोर, सोरिंग एवर सिंगेस्ट, है ना। इसको इनवर्जन कह दिया जाता है ग्रामर की भाषा में कई बार, और कियासमस भी, ठीक है। इसमें क्या है, शब्दों का स्ट्रक्चर बदल देते हैं, है ना, ताकि इफेक्टिव लगे, लेकिन अर्थ सेम रहता है, ठीक है। तो ये दो शब्द आप याद रखना, ये डिवाइस हैं, इनका कई बार आपसे पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, है ना, ऑप्शन टाइप में। आगे देखिए, इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ संकन सन, शाम का समय है, क्षमा चाहूंगा, शाम का समय है और सन डूब रहा है ना, और सन डूबता हुआ तो यहाँ चिड़िया उड़ रही है ना, फुल तीव्रता के साथ में, तेजी के साथ चिड़िया उड़ती जा रही है, और जो ग्लैमिशनेस होती है सन की, है ना, हल्का हल्का सन डूब रहा है ना, तो ये उसमें ऊपर उड़ रही है। ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, है ना, तो चिड़िया उड़ रही है। आपने कई बार सीनरी देखी होगी, ये एक इमेजरी है, काइंड ऑफ इमेजरी, ऑथर ने इसको बनाया है, कि जैसे आपने देखा होगा चिड़िया उड़ रही है ना, बादलों के ऊपर सन है, तो आपने देखा होगा बादलों के कई बार आसमान में आपको शेप्स दिखाई देते हैं, तो कुछ इसी प्रकार से वो दिखाने का प्रयास कर रहा है। यू डू फ्लोट एंड रन, है ना, वो आसमान में उड़ रही है ना, चिड़िया जो आसमान में उड़ रही है, तो उसके लिए पोर्ट बोल रहा है, यू डू फ्लोट एंड रन लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगन, है ना, तुम कोई ऐसी खुशी जिसमें, मतलब कोई ऐसा खुशी का पल जो शरीर से रहित हो, जिसमें शरीर हो ही ना, मतलब कोई परेशानी पैदा ही ना हो, कोई समस्या ही ना हो इंसान को ट्रांसेंड करने में। ट्रांसेंड मतलब बॉडी यहीं रह जाए, आत्मा कहीं और पहुंच जाए खुशी के मारे। तो वो कह रहा है कि बिल्कुल जैसे ही कोई बिना शरीर की खुशी होती है ना, है ना, उस प्रकार की रेस कर रही हो तुम, कहाँ? आसमान में उड़ती हुई। कौन? चिड़िया, है ना, इसका इलाज।
द पेल पर्पल इवनिंग, इवन से तात्पर्य इवनिंग है ना, शाम का टाइम है, शाम का समय है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो इवनिंग है, इवनिंग शाम हो जाती है, सन ढल रहा है ना, तो कई बार ऐसा लगता है जैसे मतलब कलर फैल रहे हैं, आपने आसमान में देखा हो, तो ये इसीलिए इसको यहाँ मेल्ट कहा गया है, मेल्ट अराउंड दाई फ्लाइट, है ना, मतलब उसके पंखों के चारों ओर ऐसा लग रहा है जैसे इवनिंग पिघल रही है ना, लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट, बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे स्टार ऑफ हेवन होता है ना, कोई भी तारा जो हेवन का हो जो दिन के समय होता है, यहाँ कहने का तात्पर्य वो ये प्रयास कर रहा है कि जिस प्रकार से, अब मैंने आपको बताया चिड़िया उड़ती जा रही, अब कहीं ना कहीं उसकी आंखों से डिसअपियर हो रही है, उसके जो उसका जो विजन है ना, उसे आउट ऑफ विजन जा रही है चिड़िया, तो अब वो उसका कंपैरिजन करता है स्टार ऑफ हेवन से, है ना। और दिन के समय आप मुझे एक बात बताइए, जब सुबह धूप होती है तो क्या आपको चांद और तारे दिखते हैं? निश्चित तौर पे आपको नहीं दिखते। तो बिल्कुल उसी प्रकार से अभी इवनिंग का टाइम है, सन ढल रहा है, उजाला बहुत ज्यादा है नहीं, जिसकी वजह से वो उसको देख नहीं पा रहा है। तो कहता है जिस प्रकार से व्यक्ति दिन के समय में चंद्रमा, है ना, और तारों को नहीं देख पाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से प्रकाश के अभाव में शाम के टाइम वो कहीं ना कहीं जो पक्षी है वो उसकी आंखों से ओझल हो रहा है ना, वो उसे देख नहीं पा रहा है। देखो, यू आर अनसीन बट येट आई हियर योर श्रिल डिलाइट, मतलब वही मैंने जो बोला कि वो उसको देख नहीं पा रहा है लेकिन उसकी आवाज उसको अभी भी सुनाई दे रही है। अब यहाँ गजब का कॉम्प्लेक्सन आप देखेंगे, आपने श्रिल का प्रयोग कई बार कई जगह देखा होगा। श्रिल कोई ऐसा साउंड जो कर्कश हो, लेकिन वहां यहाँ तो वो तो तारीफ कर रहा है साउंड की, फिर क्या कहना चाहूंगा, क्या सोच के इस्तेमाल किया हो, इंटेंसिटी है आवाज में, बहुत श्रिल है। यहाँ श्रिल इसलिए कि पीवी शैले जहां कमेमोरेट कर रहे हैं, जहां रिमेंबर कर रहे हैं ब्यूटी इस वर्ड की, साउंड की, वहीं कहीं ना कहीं इनके जीवन में इसी समय के दौरान में इनके बच्चों की डेथ हुई, है ना, इनके कुछ पारिवारिक और मेंबरों की डेथ हुई, कुल मिला के ये इनके लिए लेस, मतलब लॉस का समय था, है ना। तो ये यहाँ अपने दुखों से जूझ रहे थे, तो ये जो ध्वनि भरा मीठा साउंड है ना, ये इनको श्रिल महसूस हो रहा है इनके दुखों की वजह से। साउंड तो उसका अच्छा है पर इनके अपने जीवन के लिए, है ना, तो इसलिए इस्तेमाल किया है। Keen edge are the arrows of that silver spear, इसकी आवाज बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे कि किसी प्लेनेट से या फिर कोई एक स्टार है, वहां से जो आपने सन से रोशनी निकलती हुई देखी होगी आपने बचपन में, एक सेकंड, जैसे सपोज ये बनाया मैंने सन, ठीक है, और सन के ये मैंने रेज निकाल दी, ठीक है। अब ये जो रेस निकल रही है इनको आप एरो मान लो, ये जो बीम निकल रही है ना, बीम, किरणें, है ना, तो ये किरणों को आप एरो मान लो, है ना। तो कोई एक सिल्वर स्पेयर है, मतलब एक कोई ग्रह है, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, कोई सिल्वर स्पेयर है जिससे किरणें जिस तरह से तीक्ष्णता के साथ, है ना, इंटेंसिटी के साथ निकलती हैं, बिल्कुल उसी प्रकार इसको आवाज लग रही है स्काई लार्क की, whose intense lamp narrows in the white dawn clear until we hardly see, we feel that it is there। बिल्कुल उसी प्रकार से अब यहां आपने देखा हो, सुबह भोर का तारा किसको कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है, आप जानते होंगे। जब सुबह आप देखेंगे, जब सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, तो आपने देखा होगा सुबह के टाइम आप जब उठना, बहुत ज्यादा उजाला ना हो, तो आपको एक तारा दिखेगा चमकता हुआ, है ना। तो ये उसी तारे की बात हो रही है कि जब धीमे 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 सुबह प्रकाश बढ़ता जाता है, तो व्यक्ति को सुबह जो देखता है उसको पता है कि वो वहां स्थित है ना, जिस भी दिशा में हो, है ना। लेकिन जैसे ही प्रकाश बढ़ता जाता है, प्रकाश बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति को फिर भी पता है कि वो इस दिशा में सिचुएटेड है, वो अलग बात है, दिख नहीं रहा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से, इसी वीनस की तरह, या रेफरेंस है वीनस का, ठीक है, शुक्र, यहाँ वीनस का रेफरेंस है, अल्यूजन बोलते हैं इस फिगर ऑफ स्पीच को, ओके, इसको अल्यूजन कहा जाता है।
तो यहाँ अल्यूजन दे रहे हैं पीवी। तो जिस प्रकार से हमें पता होता है, हमें दिख नहीं रहा है कि वो अपनी जगह पर स्थित नहीं है, उसके बावजूद भी वो हम मान के चलते हैं कि वो वही है। बिल्कुल उसी प्रकार से इसको स्काई लार्क का साउंड सुनाई दे रहा है पर वो दिख नहीं रही है, तो इससे ये अज्यूम कर पा रहा है कि हाँ वो कहीं ऊपर ही उड़ रही है। समझ आ रहा है ना? देखिए, उम्मीद करता हूं कि आप कुछ समझ पा रहे होंगे, मेरा एफर्ट व्यर्थ नहीं जा रहा होगा। मेरा एफर्ट व्यर्थ नहीं जा रहा होगा। देखिए, ऑल द अर्थ एंड एयर, है ना, विद दाई वॉइस इज लाउड, है ना। अब चूंकि वो ऊपर उड़ रही है, तीव्रता के साथ उसका साउंड जो है, श्रिल साउंड है, वो निकल रहा है। तो सामने वाला कह रहा है, ऑथर कह रहा है, ऑल द अर्थ एंड एयर, कि जमीन आसमान, विद दाई वॉइस इज लाउड, उसकी मतलब जो पक्षी है ना, उसकी आवाज के साथ गूंज रहा है ना। एज, मानो, when night is aware, from one lonely cloud the moon rained out her beams and heaven is overflowed। मतलब ये यहाँ बताने का प्रयास कर रहा है जैसे कि कोई रात खाली अकेली हो जिसमें एक बादल हो, है ना, और उसी बादल पे जो मून है वो अपनी प्रकाश को प्रोजेक्ट कर रहा है ना। कुछ इस प्रकार की सुंदरता है इसमें, स्काई लार्क की आवाज में, जो एक दृश्य बनता है जब एक अकेले बादल के ऊपर जब चांद की रोशनी रात के टाइम पड़ती है, तो आपने देखा होगा कितना ब्यूटीफुल दृश्य होता है ना। तो इस इंसाइट को, इस दृश्य को वो मतलब अपने ऑडिटरी सेंसेस के द्वारा इस्तेमाल कर, सुनना चाहता है ना, अज्यूम कर रहा है कि कुछ इस प्रकार की सुंदरता है ना। अब इतना इसके बारे में इसने बता दिया, कंपैरिजन देने का प्रयास किया। अब ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, सुनिए, व्हाट यू आर वी नो नॉट, तुम क्या हो हमें नहीं पता। व्हाट इज मोस्ट लाइक दी, तुम किस प्रकार की हो, है ना, मतलब तुम किस प्रकार की हो, तुम क्या हो हमें कुछ नहीं पता। पहले प्रयास कर रहा था कंपैरिजन देने का, है ना, कंपैरिजन स्केच कर रहा था कि तुम इसके जैसे हो सकते हो, तुम्हारा साउंड इसके जैसा है, तुम वीनस के जो बीम निकलती है उनके समान तीक्ष्णता है तुम्हारी आवाज में, है ना। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप सो ब्राइट टू सी एज फ्रॉम द प्रेजेंस showers a rain of melody, है ना। तो अब यहाँ ये बता रहे हैं तुम क्या हो, तुम किस प्रकार की हो। फिर ये यहाँ एक उदाहरण देने का प्रयास कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट, है ना। जो जो रेनबो है ना, रेनबो का जो क्लाउड है ना, वो उड़ता नहीं है, वो अपनी जगह पर स्टैटिक है, अपनी जगह पर ठहरा हुआ है। तो उस क्लाउड में से कोई जो शाइनिंग करती हुई जो ब्राइट जो ड्रॉप गिरती है ना, जो उसमें से जो उजाला आता है ना, तो कुल मिला के एक रेनबो बन जाता है। आप ये मान के चलिए, उसका कहने का तात्पर्य ये है, शब्दों के साथ उसने बहुत अच्छा खेला है। तो एक प्रकार का रेनबो बन जाता है। रेनबो से जो सुंदरता प्राप्त होती है ना, तो बिल्कुल उसी प्रकार की सुंदरता या उससे भी ज्यादा सुंदरता कहीं ना कहीं जो स्काई लार्क है, जो उसकी जो धुन है ना, वो जो गा रही है ना, उसकी जो आवाज है वो रेन की एक मेलोडी के समान, है ना। मेलोडी एक विशेष प्रकार की धुन मान लीजिए। तो इसको पानी से कंपेयर किया गया है, रेन से कंपेयर किया गया है, किसको, साउंड को, किसके साउंड को, स्काईलार्क के साउंड को, है ना। एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस showers a rain of melody, है ना। बिल्कुल उससे इसका कंपैरिजन जो है किया गया है ना। अच्छा, लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट। अच्छा सुनिए, लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट। अच्छा मेरे को ये बताइए, क्या कोई व्यक्ति लाइट में छुप सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि आप लाइट में छुप जाओगे? बिल्कुल नहीं। आप लाइट में जब जाओगे तो आप प्रकाशित होगे, लोग आपको आसानी से देख पाए। समझ रहे हो मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूं? फिर यहाँ ये इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि लाइट ऑफ थॉट,
मतलब तुम इसमें छुपे हुए हो। वो इसलिए कि कोई भी पोम जब लिखी जाती है तो उसमें बेहतरी के साथ इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है ना। और जब तुम लाइट में आ रहे हो इसका मतलब तुम रीजन का इस्तेमाल कर रहे हो, और जब तुम रीजन का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर वो रोमांटिक पोइट्री किस चीज की, किस प्रकार की रोमांटिक पोइट्री, अगर तुम उसमें रीजन इस्तेमाल कर रहे हो तो यही तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो रोमांटिक पोइट्री को अन्य अन्य जितनी भी पोइट्री के टाइप्स हैं उनसे अलग बनाता है। ठीक है, तो इसलिए सिंगिंग हाइम्स अनबिडन, जो हाइम्स होते हैं, जो भी धार्मिक गीत होते हैं, है ना कहीं उन्हें किसी देवी या देवता के साथ जोड़ के देखा जाता है। जैसे आरती मान लीजिए, हमारे अपने कल्चर धर्म में, मैं हिंदुइज्म से बिलोंग करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप हैं, और नहीं है तो आपके अपने रिलीजन में कुछ हाइम्स रहे होंगे। जैसे माता काली की आरती हो गई, है ना, भगवान शिव जी की आरती हो गई, हनुमान जी महाराज का चालीसा हो गया, तो कुछ इस प्रकार से, है ना। तो ऐसे ही जो सिंगिंग हाइम्स होती हैं वो बिडन होती हैं, बनी हुई होती हैं ईश्वरीय भक्ति में, कोई स्पेसिफिक ईश्वर के लिए, है ना। लेकिन तुम जो गा रहे हो, है ना, स्काईलार्क, तुम जो गा रहे हो वो अनबिडन है, वो बना हुआ नहीं है, वो फ्री है। टिल द वर्ल्ड इज रॉट टू द सिंपैथी विद होप्स एंड फियर्स इट ही डिड नॉट, और उसे किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, दुनिया में क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। It is just singing and singing. It is not caring for anything else. अब यहां रेफरेंस दिया है रिपंजल का। ये एक फेयरी टेल है। इसका रेफरेंस आपको लेडी ऑफ शैलॉट में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेडी ऑफ शैलॉट को टेनिसन ने लिखा है। ठीक है, रेपंजल एक लेडी थी, है ना, काफी उसके बड़े बाल थे। किसी कर्ज के चलते उसे एक टावर में बंद कर दिया गया था उसके खुद के पिताजी के द्वारा, है ना। और उसके बाद वो कहीं बाहर नहीं निकल पाती थी, जो भी करती थी अंदर करती थी अपने टावर के अंदर, और वहीं से ग्लास में बाहर का नजारा दिखती थी, वो डायरेक्ट बाहर भी नहीं झांक पाती थी, है ना। तो ये एक फेयरी टेल है रिपंजल की, जिसका रेफरेंस देखने को मिलता है टू अ स्काईलार्क में। आपको याद रखना है, सुनिए, देखिए। लाइक अ हाई बॉर्न मेडन, वो अच्छी रिच क्लास से, एलीट क्लास से आती थी रिपंजल। तो एक हाई बॉर्न मेडन, है ना, कोई ऊंचे कुल में जन्मी कोई लड़की, है ना, इन अ पैलेस टावर, है ना, वो मैंने आपको बताया टावर में पैलेस में रहती है। सूदिंग हर लव लेडन सोल इन द सीक्रेट आवर, है ना, एक लड़की जो कहीं किसी के प्रेम में दबी हुई है ना, और वो किसी घंटे में, मतलब एक समय को अपने को एंजॉय कर रही है, अपना अपना कह सकते हैं एक अच्छा क्वालिटी टाइम व्यतीत कर रही है ना। किसके साथ में? विद स्वीट म्यूजिक एज लव विच ओवरफ्लोज हर बाउल, है ना। तो जो साउंड है स्काईलार्क का, यहां भी अल्टीमेटली रेफरेंस उसी का दिया गया है, डायरेक्ट नहीं दिखाया गया है, लेकिन जो साउंड, जिस साउंड को ये एंजॉय कर रही है, जिस साउंड से ये लव लेडन है ना कहीं जिस प्रेम से दबी हुई है, वो म्यूजिक है स्काईलार्क का स्वयं का, है ना। तो ये उस म्यूजिक को एंजॉय कर रही है ना। कहाँ कहाँ पे कर रही है? अपने पैलेस के टावर, है ना। देखो स्काईलार्क का साउंड कहाँ कहाँ तक पहुंच रहा है, और किस प्रकार से पीबी सैले ट्रांसेंड कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक रेफरेंस से दूसरे रेफरेंस। मतलब इसको कहते हैं एक तरह का एपिक वर्क, एक ऐसा वर्क जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। अब देखिए अगला कैसे जोड़ते हैं वो। लाइक अ ग्लो बॉम गोल्डन, आपने जुगनू सुना होगा, है ना। जिस प्रकार से आपने जुगनू को देखा होगा पहाड़ियों में, खाइयों में, है ना, बरसात के मौसम में उड़ते हैं, है ना। तो ये स्कैटरिंग अनबीहोल्डन इट्स एरियल ह्यू, है ना, तो ये फैला रहे हैं एक विशेष प्रकार की लाइट कलर से भरी हुई अमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास व्हिच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, है ना, जो कि देखा जा सकता है। मतलब जो सुंदरता, जो जुगनू होते हैं ना बरसात के मौसम में, खाड़ियों में, है ना, घाटियों में, है ना, बरसात के बाद में जो हल्की हल्की सुंदरता होती है, जुगनू उड़ते हैं तो आपको लाइट उड़ती हुई दिखती है, जो एक विशेष प्रकार का जो कह सकते हैं मेस्मराइजिंग साइट है ना,
तो कुछ इसी प्रकार का जो मेस्मराइजिंग साइट जो आनंद देता है, बिल्कुल इसके कंपैरिजन में जो स्काई लार्क का साउंड है वो इसी प्रकार जो सुनने वाला है उसको आनंद पहुंचाना है ना, प्लेजर दे रहा है। मीनिंग देख लेना, याद रखना, वैसे तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई रह जाए तो देख लेना। हो सकता है यहीं से 6 या 7-8 लाइन उठा के आपसे सामने वाला कोई पैसेज पूछ ले, है ना। याद रखना, क्योंकि वर्ग 3 में आ जाता है तो वर्ग 1 तो फिर भी बड़ी बात है। मान के चलो पूछ ले तो कोई बुराई नहीं है, इंसान का कॉम्प्रीहेंशन तो अच्छा होना ही चाहिए यदि आप इंग्लिश लिटरेचर में है तो। देखिए अब अगला कंपैरिजन देखिए, लाइक अ रोज एम्बावर्ड इन इट्स ऑन ग्रीन लीव्स, बिल्कुल इस प्रकार जैसे एक रोज जो है वो खुल जाता है, खिल जाता है अपनी पत्तियों के बीच में बाय वार्म विंड्स, है ना। जो खिल जाता है तो उसके बाद में जो गर्म हवाएं आती हैं, वो उसकी जो सेंट है ना, जो उसकी खुशबू है ना पेड़ की, फूल की, उस खुशबू को डीफ्लावर कर देती हैं, तब फूल से उसकी खुशबू को छीन लेती हैं गर्म हवाएं, है ना। Till the scent it gives makes faint with too much sweet those heavy winged thieves। यहां कहीं ना कहीं उसने हवा को हाई विंग्ड थीप कहा है, ठीक है। और जैसे जो रोज है ना, ठीक है, रोज देख रहे हो आप किस प्रकार कंपैरिजन है, चिड़िया की बात कर रहा है और कहां कहां पहुंच गया उसने, कोई एक ऐसा फिक्स डोमेन ही नहीं है ना। तो हवा को यहाँ वो कंपैरिजन किससे किससे कर रहा है, हैवी विंग्स थीफ के साथ, कि जो कोई भी फूल खिलता है उसको, है ना, उसको वो मुरझा जाता है गर्म हवा से, उसकी खुशबू को अलग ले जाता है कौन, चोर, कौन चोर, हवा। अगला कंपेरिजन देखो, साउंड ऑफ बर्नल सावर्स, बर्नल सावर्स से तात्पर्य बारिश के मौसम में जब आपने देखा हो बूंदें टपकती हैं तो जो आवाज होती है ना वो, ऑन द टिंकलिंग ग्रास, है ना। तो जो सावर होने के बाद में जो चमकती हुई घास है, रेन अवेकन्ड फ्लावर्स, बारिश के बाद में जो फूल खिल चुके हैं, फूलों के ऊपर हल्की हल्की ओस जमी हुई है, ऑल दैट एवर वाज जॉयस एंड क्लियर एंड फ्रेश दाई म्यूजिक डू सरपास। मतलब जो बर्नल सावर्स में जो साउंड उत्पन्न होता है उससे ज्यादा, और उसके बाद में जो घास के ऊपर ओस आ जाती है, उसका जो व्यू होता है, उसका जो मनोरम दृश्य है उससे भी ज्यादा, और उसके बाद में जो फूल खिले हुए हैं पानी बरसने के बाद जिन पर ओस जमी हुई है, उन सबसे ज्यादा, इन सभी मनोरम दृश्यों को भी सरपास कर जाता है म्यूजिक। किसका म्यूजिक, स्काई लार्क का म्यूजिक। समझ आए, मतलब जो स्काई लार्क है वो सुप्रीम है हर चीज में, सबसे ऊपर किसी की यदि ब्यूटी आती है तो वो स्काई लार्क की। ये जो लाइन है इनको कम से कम 2-2 3-3 बार पढ़ लेना। यदि सामने वाले व्यक्ति ने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो आपको सीधी लाइन कोट कर दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा इस लाइन को किस पोम से उठाया गया, और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2-3 बार पढ़ के निकल जाना है, इसको बस पढ़ना है, रटने का प्रयास नहीं करना है, जरूरत नहीं है, पढ़ के निकल जाना है, आपको समझ आ जाएगा ये किसकी लाइन है। वैसे तो यदि जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको एक्सप्लेनेशन से ही समझ में आ जाएगा लाइन पढ़ती है ना। चलिए, टीचर्स, हमें सिखाओ, हमें पढ़ाओ, बर्ड और स्पिरिट, क्या हो तुम पक्षी हो या आत्मा हो, तुम जो भी हो, हमको सिखाओ, क्या सिखाओ, वॉट स्वीट थॉट्स आर दाइन, कि तुम्हारे जो मीठे जो जो थॉट्स हैं, जो जो कह सकते हैं सुखी हैप्पीनेस देने वाले जो थॉट्स हैं वो क्या हैं। आई हैव नेवर हर्ड प्रेज ऑफ लव और वाइन, मैंने इंसान के दारू पीने के बाद, और या फिर कह सकते हैं या फिर किसी की प्रेम में तारीफ करने में भी इतनी खुशी नहीं देखी है जितनी मैं तुम्हारे साउंड में सुन पा रहा हूं, महसूस कर पा रहा हूं। दैट पेंटेड फोर्थ अ फ्लड ऑफ रप्चर सो डिवाइन, जो कहीं ना कहीं एक सोर्स है, एक जरिया है हैप्पीनेस के खुलने का, है ना, कि किस प्रकार से हैप्पीनेस एक डिवाइन बन के निकल रही है तुम्हारे साउंड से, है ना। अब ये बता रहा है ये जो तुम गा रहे हो ये क्या हो सकता
या फिर किस किस प्रकार की चीजें गाई जा सकती हैं और उनसे तुम्हारा क्या वास्ता है? देख, कोरस हिमेनियल, वे गीत जो शादी के समय गाए जाते हैं। और ट्रायम्फल चैंट, ट्रायम्फल चैंट मतलब ये कोई कोई जैसे कोई किसी ने किसी से लड़ाई करी है, डुअल हुआ है ना, और उसमें जीतने के बाद में लोग वाहवाही कर रहे हैं कि वो जीत गया, वो जीत गया। ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि फलानी की जय हो, ढिकाने की जय हो, उस प्रकार से, है ना। तो या तो शादी के गीत हो या फिर जो जय जयकार हो जीतने के बाद में, मैच्ड विद दाइन वॉइस विल बी ऑल बट एन एम्पटी वॉल्ट, इसके सामने कुछ भी नहीं। जो जो हिमेनियल है, जो शादी के गीत हुए या फिर जीत के बाद का जो जश्न हुआ, इनकी जो ध्वनियां हैं, इनकी जो हैप्पीनेस है, वो कहीं नहीं टिकती किसके सामने? स्काई लार्क की खुशी के सामने, जिसको कि जो हमारा कह सकते हैं ऑथर है, जो हमारा पोर्ट है, वो महसूस कर पा रहा है किससे? उसके साउंड के द्वारा, स्काई लार्क के, है ना। अ थिंग वेयर इन वी फील देयर इज सम हिडन वांट, है ना। एक ऐसी चीज जो कह सकते हैं, जो कोरस हिमेनल हुए, ट्रांफल जो चैंट हुआ, उसमें फिर भी कुछ रह जाता है, जिसके कारण उनका स्तर जो है, जो कोरस हिमेनलिया और ट्रांफल चैंट है, उनका जो स्तर है वो नीचा रह जाता है। किससे? स्काईलार्क के साउंड से, है ना कुछ कुल मिला के कमी है, कंप्लीट नहीं है, इतना कंप्लीट नहीं है कि उसको कंपीट किया जा सके स्काईलार्क के साउंड से, है ना। खुशी का जो जरिया है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों, किस बात की इसको खुशी है, किसको? स्काईलार्क को। व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स ऑफ द हैप्पी स्ट्रेन, वो पूछ रहा है कि क्या सोर्स है तुम्हारी इतनी खुशी का, तुम इतने खुश क्यों हो? व्हाट फील्ड्स और वेव्स और माउंटेन्स, या मतलब कोई खेत या फिर कोई धाराएं, वेव्स, या फिर कोई माउंटेन्स, कहां से तुम्हें इतनी खुशी आ रही है? क्या है तुम्हारे पास जिसकी वजह से तुम इतने खुश हो? व्हाट शेप्स ऑफ स्काई और प्लेन, है ना। और किस प्रकार के जो आकाश के जो आकाश के जो प्रकार हैं या फिर शेप्स हैं, या फिर कोई विशेष प्रकार की प्लेन जो लैंड है ना। तो क्या है तुम्हारे खुशी का जरिया, क्यों तुम इतने खुश हो? तुम्हारी आवाज में इतनी प्रसन्नता क्यों प्रतीत होती है? White appears happy, है ना। What love of thine on kind, what ignorance of pain, या तो ऐसा हो सकता है कि तुम किसी के अपने जैसे पक्षी के प्रेम में पड़े हुए हो, है ना, है ना। और मतलब ऐसा क्या है कि तुमको कोई दुख ही नहीं है, मतलब तुम खुश ही हो, निरंतर खुश हो, तुम पेन को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे हो, है ना। विद दाई क्लियर कीन जॉयंस लैंग्वर कैन नॉट बी, कि तुम्हारी जो जॉय भरी ध्वनि है, जो जॉय भरा जो साउंड है आपका, उसको सुन के मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये किसी प्रकार का दुख तो नहीं है, दुख तो ये हो नहीं सकता। शैडो ऑफ एनोयंस नेवर कम या फिर केम नियर दी, है ना। जो एनो मतलब जो चिड़चिड़ाहट है ना, चिड़चिड़ाहट की परछाई भी कभी तुम्हारे नजदीक नहीं आई होगी, मुझे लगता है तुम्हारी ध्वनि को सुन के ऐसा लग रहा है। Thou lovest but never knew love's sad satiety, कि तुम्हें प्रेम किया गया होगा, तुमने प्रेम एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन तुमने जो प्रेम में इंसान की कुंठा होती है, जो फ्रस्ट्रेशन होती है, तुमने वो तक महसूस नहीं करी होगी। पीबी शैली ये कहना चाहता है। और यहाँ पे मैं फर्स्ट लेक्चर को विराम देता हूँ। अगले लेक्चर पे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर पे इसको फिनिश कर दूं। और इसके साथ ही साथ एक काम और कर दूंगा, वो ये कि इसकी जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, जैसे टोन किस प्रकार की है, क्या क्या मेजर थीम्स हैं, है ना, किस प्रकार के मीटर का इस्तेमाल हुआ है ना, किस कलेक्शन में इसको पब्लिश किया गया है, वो सारी चीजों के बारे में मैं अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में बात करूंगा। तब तक के लिए बाय, और मैं चलता हूँ। और एक बात और आपको भूलना नहीं है कभी भी, यदि कोई आपका अपना इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहा हो, तो आप ये यूट्यूब चैनल उन तक जरूर पहुंचाएं। बिकॉज मैं इंग्लिश लिटरेचर का प्रैक्टिशनर हूं, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो कैजुअली आके खड़े होकर पढ़ाना शुरू करेगा। बिकॉज आई एम परस्यूइंग माई पीएचडी फ्रॉम अ रिनाउंड इंस्टीट्यूशन। ओके, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस अपनों के साथ चैनल को शेयर कर देना है ना। जिससे क्या होगा, थोड़ा सा आगे चल के मेरे पास मेरी सपोर्ट टीम होगी, मेरे पास कोई सपोर्टिंग टीम नहीं है।
It is consuming my time, but I am doing it just for the sake of my practice. I wanted to, I should say, renovate my skills. तो तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी.